The old man was walking slowly. Okay. In this sentence, slowly is the adverb of manner. Okay. So you have to write here am. The kittens are playing there. There. This is known as about place. यहाँ पे there का मतलब क्या होता है? Place बताया गया है. Kittens वहाँ पे खेल रहे हैं. तो this is adverb of place here. Okay, so student, you have to just complete this exercise. After that we are going with this. Now read these sentences. Okay, यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए. Let's read it. It is extremely cold. Okay, बहुत ठंडा है. तो cold, here cold is adjective. Adjective means जो extremely. ओके बहुत क्या है? ठंडा है. कोल्ड जो हुआ वो हुआ एडजेक्टिव. राइट. द सन वॉज ऑलरेडी सेटिंग मीन्स सेटिंग. दिस इज सेटिंग इज वर्ब. ठीक है. सन क्या हो रहा है? सेटिंग डाउन हो रहा है. देन ही वॉक्ड वेरी क्विकली. सो क्विकली जो है दिस इज एडवर्ब. वॉक कर रहा है पर कैसा? क्विकली. वेरी मतलब क्विकली. सो दिस इज क्विकली इज एडवर्ब. सो इन दिस 3 सेंटेंस यहाँ पे हमें एडजेक्टिव भी बताया है, वर्ब भी बताया है और एडवर्ब भी बताया है. ओके. द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस द डिग्री ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. दीज एडवर्ब्स आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जिसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बोलेंगे. सो रिलेटेड दिस वी आर गोइंग विद दिस एक्सरसाइज बी. नाउ fill in the blank with the correct word from the brackets. First one, she finished her day's work and was blank exhausted. Exhausted means a lot आएगा या totally? So related to this sentence, this is answer is totally. Okay, she finished her work. उसने उसका काम खत्म किया है. Totally exhausted. Second one, Lata Mangeshkar isn't just a good singer. She's dash fantastic. Option is absolutely and very. No, very fantastic नहीं बोल सकते हम. Absolutely fantastic. She is a good singer. Okay, just good singer ही नहीं है, बहुत अच्छी वाली सिंगर है. Absolutely fantastic. The Taj Mahal at Agra is dash stunning. 2 and definitely. Definitely. So you have to write your answer is definitely. 4 number. The Ajanta caves in Maharashtra is blank interesting. Quite or almost? Quite interesting. Okay. So here answer you have to write quite. 5th number. The teenager in the group is blank lazy. Teenager in the group is blank lazy. So enough for it. Extremely. This is extremely lazy. आलसी होना. ठीक है. It was blank freezing this morning. It was absolutely freezing this morning. Very नहीं आएगा यहाँ पर. Okay, because यहाँ पर extremely बोला है. ठीक है. So extremely talented. Oh, sorry, absolutely freezing this morning. Okay, morning का है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो absolutely हुआ वो absolutely, here the word absolutely means this is adjective you can say. Okay. Riya in my opinion is blank talented. Completely या extremely? Extremely. Right. So this is extremely. You have to write your answer. Mrs. Sen, our class teacher, is a lot really nice. क्या आएगा आंसर? A lot नहीं हो सकता because this is about a person. We are talking about this person, Mrs. Sen. So really nice बोलेंगे हम. ठीक है. So you have to write here really. So complete this exercise B. Then we are going with our page number 62. In this
पेज नंबर 62. रीड दिस सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस. ओके स्टूडेंट, ये जो है ये भी एक पूरा न्यू टॉपिक है. इसमें अभी आपको क्या करना है, लेट्स सी. I could not have slept tonight if I had left those robins to perish. Means यहाँ पे जो सेंटेंस है, दो सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें बिकॉज एंड इफ का यूज करना है. ठीक है, और दो सेंटेंस को क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है, मतलब कि मैच किया है. देख सकते हो आप यहाँ पे इफ का यूज करके दो सेंटेंसेस को मैच किया है. ओके, सो हियर इफ एंड बिकॉज दैट बोथ आर नोन एज कंजक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन, संयोजक बोल सकते हैं हम. ठीक है. सेकेंड सेंटेंस. अ मदर बर्ड वॉज एंक्सियस बिकॉज द बेबी बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई. ठीक है, मतलब यहाँ पे इफ और बिकॉज जो है वो क्या हुआ, कंजक्शन हुआ, संयोजक जिसको हम बोल सकते हैं. ऐसे भी बहुत सारे कंजक्शन है जिसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर के टॉपिक्स में. Each of these sentences has two parts that joined by two words because and if. Such words which are used to join sentences are known as conjunctions. संयोजक बोलते हैं. दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं संयोजक, कंजक्शंस. ओके, रिलेटेड टू दिस वी आर गोइंग विद दिस एक्सरसाइज सी. यूज इफ और बिकॉज टू ज्वाइन दिस सेंटेंस. ओके, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए. अभी यहाँ पे हम इफ यूज करेंगे या बिकॉज यूज. अगर कोई रीजन थ्रू है सेंटेंस तो हम यहाँ पे बिकॉज यूज करते हैं. ठीक है, मतलब रीजन दिखाते हैं. और अगर ऐसा होगा तो ये है, मत तो इफ आएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आर्थर विल बी स्टेइंग बैक आफ्टर स्कूल फुल स्टॉप. ही हैज फुटबॉल प्रैक्टिस. ओके, आर्थर की बात हो रही है, बिकॉज आएगा, ही हैज अ फुटबॉल प्रैक्टिस. वो स्टेइंग बैक आफ्टर स्कूल, स्कूल से क्या है, वो खत्म होने के बाद वो वहीं पे मतलब वो वापस वहीं पे रह रहा है. बिकॉज ही हैज अ फुटबॉल प्रैक्टिस, फुटबॉल प्रैक्टिस थी उसकी, इसके कारण. सेकेंड एग्जाम्पल. सो वी आर यूजिंग इंस्टेड ऑफ दिस फुल स्टॉप वी आर राइटिंग बिकॉज. बिकॉज लिख के पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आर्थर विल बी स्टेइंग बैक आफ्टर स्कूल बिकॉज ही हैज फुटबॉल प्रैक्टिस. ओके, सो कंप्लीट दिस सेंटेंस. वी आर, क्या हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है, क्या यूज किया, बिकॉज, और पूरा सेंटेंस बना दिया. ऐसे करके आपको ये सभी सेंटेंसेस फिलअप करने हैं. सेकेंड वन. आई विल डू वेल इन माई एग्जामिनेशन. फर्स्ट सेंटेंस, आई स्टडी हार्ड. सेकेंड सेंटेंस, अभी हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे. आई विल डू वेल इन माई एग्जामिनेशन. अगर मैं मेरी एग्जाम में अच्छा करूंगी तो क्या है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई स्टडीड हार्ड. मुझे हार्ड वर्क, मेहनत करनी पड़ेगी. ठीक है, पढ़ने में. सो वी आर यूजिंग दिस इज इफ. आई एम गोइंग आउट टू प्ले फुल स्टॉप. आई हैव फिनिश्ड ऑल माई वर्क. मैं क्या है, बाहर खेलने जा रहा हूँ. क्यों, क्योंकि मेरा काम, सब काम जो है वो खत्म हो गया है. ठीक है, 4 नंबर. सो वी आर यूजिंग दिस बिकॉज. I will go for a walk. 4 number. You come with me. I will go for a walk if you come with me. अगर आप मेरे साथ आओगे तो मैं चलने जाऊंगा. ठीक है, ओके. Mary had fever. She had got wet in the rain. बारिश में बहुत भीगी थी जिसके कारण उसको क्या हो गया, फीवर, मैरी को. सो वी आर यूजिंग बिकॉज. Mary had fever because she had got wet in the rain. ठीक है, because we are using this because and complete this sentence. I will eat rice for lunch. This is full stop. You serve it with curry. I will eat rice for lunch if you serve it with curry. अगर आप मुझे क्या है, करी दोगे तो मैं लंच में क्या है,
राइस खाऊंगा या खाऊंगी, ठीक है। आई कांट गो आउट टू प्ले, इट इज रेनिंग। दो सेंटेंस है, अभी हम यहाँ क्या यूज करेंगे, बिकॉज इट इज रेनिंग, मैं बाहर खेलने नहीं जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत रेन है, क्योंकि, सो बिकॉज इज कंजक्शन हियर इन दिस सेंटेंस, ओके। यूजिंग बिकॉज एंड कंप्लीट दिस वन। इफ यू, देखो यहाँ पे दो सेंटेंस दिए हैं, यू वॉन्ट टू बाय स्टेशनरी, कम विथ मी, तो यहाँ पे हम कंजक्शन का पहले यूज करेंगे, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बीच में ही यूज हो, ठीक है। सो इफ यू वॉन्ट टू बाय स्टेशनरी देन कॉमा कम विथ मी, अगर तुझे स्टेशनरी खरीदनी है तो मेरे साथ आओ, ठीक है। सो this is if and because, the two words are conjunction here, and complete this exercise. See.